Good afternoon, class 10. In the previous lecture, we did balancing the chemical equations. I hope you have practiced it with the problems given in your box. Practice कीजिए. Any problem? Ask me. And then we study how to make a chemical reaction more informative. And then types of chemical reaction, जिसमें हमने पढ़ा था first combination reaction. डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने एक ओवरव्यू लिया था. आज हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, these are reactions in which a single compound splits into two or more simpler substances. Since two or more simpler substances, इसका मतलब ये है कि अगर if the compound undergoing chemical reactions AB, then after the reaction the compound formed will be like this. Simpler compounds, या तो एलिमेंट्स का फॉर्मेशन या सिंपल मॉलिक्यूल बन सकता है या कंपाउंड बन सकता है. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड्स में स्प्लिट कर जाता है अंडर सुइटेबल कंडीशंस. यानी उस रिएक्शन को जिस कंपाउंड को हम डिकम्पोज करना चाहते हैं या जिस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट करना चाहते हैं, उस कंपाउंड को डिकम्पोज होने के लिए जिन सुइटेबल कंडीशंस की जरूरत है, अगर वो सुइटेबल कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो दैट कंपाउंड विल स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. Decomposition reactions are of three types. Decomposition reactions are of three types. First is thermolysis, photolysis and electrolysis. Thermolysis or thermolytic decomposition reaction, photolysis or photolytic decomposition reaction, and electrolysis or electrolytic thermodecomposition reaction. Electrolysis or electrolytic decomposition reaction. These are the three types of decomposition reactions. Now, what are the three types? What is the difference between all the three types of reactions? Thermolysis, photolysis and electrolysis. One thing, lysis का मतलब होता है breakdown. Lysis means breakdown. Breaking down of anything is lysis. Clear? Then thermolysis. Thermolysis means thermo is equal to heat, lysis is equal to breakdown. यानी जब हम कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं जिसमें हम हीट का यूज करते हैं, दैट केमिकल रिएक्शन, दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और thermolysis. Similarly, photolysis. Lysis means breakdown and photo means light. Photo is equal to light. Photo is equal to light. Photolysis यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको हम ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम कैरी आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. Such decomposition reaction is known as photolysis.
Now we'll see all the three types of reactions in detail. First of all, we will see thermal decomposition reaction. A thermal decomposition reaction or thermolysis. सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी देख लिया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिएक्शंस दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट, यानी वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको कैरी आउट करने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इट इज अ केमिकल रिएक्शन, it is a chemical reaction in which a compound breaks, or more appropriate splits into two or more simpler substances. It is a chemical reaction in which a compound splits into two or more simpler substances with the help of heat. यानी हीट की मदद से जब एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मोलिसिस। इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मोलिसिस। इट इज हीट, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड एंड दिस डिकम्पोजेस इनटू CaO plus CO2। CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड। आप सबों को इसका फॉर्मूला, जो भी मैं फॉर्मूला दे रही हूँ, आप सबों को मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सबों को उनका नाम पता है। अगर आपको नहीं पता है देन प्लीज मैं नाम जो लिख रही हूँ उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह रिएक्शंस लिखते लिखते, नाम लिखते लिखते आप सारे कंपाउंड्स के नाम जान भी जाएंगे। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट and this is carbon dioxide. Now when calcium carbonate is heated, it breaks into calcium oxide and carbon dioxide. And other name for calcium oxide इसका केमिकल नेम है इस कंपाउंड का, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्विकलाइन। द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज क्विकलाइन। वो चूना जो आपके यहाँ व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, बहुत सारे घरों में अभी भी व्हाइट वॉशिंग में चूना यूज होता है, तो वो चूना जो हमारे घर में व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, दैट इज दिस क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड। And CO2 gas is released during the process. Now what is the confirmatory test for the presence of CO2 gas? CO2 gas के प्रेजेंस को हम कंफर्म कैसे करेंगे, क्योंकि जो गैस हमारी रिलीज हो रही है दैट गैस इज CO2 गैस। आप सबको पता होगा, पर स्टिल मैं इसको एक बार बताती हूँ कि अगर CO2 गैस को लाइम वाटर से पास किया जाए, इफ CO2 गैस इज पास्ड इनटू लाइम वाटर, इस CO2 को अगर हम लाइम वाटर में पास कर दें तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। मिल्की कहने का मतलब है बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगा, जैसे दूध देखने में
calcium bicarbonate. This is calcium bicarbonate and this is calcium carbonate. Calcium carbonate is insoluble in water and calcium bicarbonate is soluble in water. ये रिएक्शन मैंने आपको बताया है, इसके आगे का रिएक्शन आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और उसको बैलेंस कीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये भी आपको बताऊंगी, बट दिस इज अ टास्क फॉर यू पीपल, ताकि आप इसके फर्दर इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए एंड बैलेंस द इक्वेशन। ओके, दिस इज अ टास्क फॉर यू पीपल। I will show you the chemical reaction in the next lecture. So let's move on. Thermal decomposition का पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया. Let's move on to the second example. The second example is thermal decomposition of potassium chlorate. The second example is thermal decomposition of potassium chlorate. Potassium chlorate. Potassium chlorate is KClO3. Potassium chlorate. Potassium chlorate. When potassium chlorate is heated, it gives KCl plus O2. KCl is potassium chloride. Potassium chloride. And O2 is oxygen. ये तो हम सब जानते हैं. Now this equation is not balanced. We have to balance this equation. This is 3, this is 2, and this is 2. This is now a balanced chemical equation. इस reaction को, if this reaction में जो potassium chlorate का thermal decomposition है, इस reaction में अगर हम MnO2 में एरो के ऊपर लिख रहे हैं, इसका मतलब आप सब समझ रहे हैं कि MnO2 मैंने एरो के ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में MnO2 is acting as a catalyst. MnO2 is not participating in the reaction itself, but it's going to speed up the reaction. Clear? So if this reaction is carried out in the presence of thermal decomposition of potassium chlorate, if it is carried out in the presence of magnesium dioxide as a catalyst, तो हमारा जो decomposition है वो थोड़ा कम टेम्परेचर पे हो जाएगा. अगर MnO2 के बिना हम कर रहे हैं तो हमें जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उससे कम टेम्परेचर हमें लगेगा पोटेशियम क्लोरेट को ब्रेक डाउन करने में, if the reaction is carried out in the presence of magnesium dioxide as a catalyst. Now let's come to the third example. The third example is thermal decomposition of ferric hydroxide. Third is ferric hydroxide. Ferric hydroxide का जब हम thermal decomposition करते हैं तो it breaks into H2O. तो thermal decomposition of ferric hydroxide gives ferric oxide and water. Ferric hydroxide, sorry, this is ferric hydroxide, ferric oxide, liquid, solid. Clear? This is the sign for, either you can write delta or you can write delta G, anything, both. आप दोनों लिख सकते हो, it's your wish. Now let's come to the next example, thermal decomposition of oxalic acid. Thermal decomposition of oxalic acid is H2C2O4 into 2H2O into 2H2O. If oxalic acid crystals, this is oxalic acid crystals. अच्छा, one thing मैंने यहाँ particularly लिखा है oxalic acid crystals. मैंने सिर्फ oxalic acid नहीं लिखा है, मैंने लिखा है oxalic acid crystals just because due to the presence of this water of crystallization. आपने बहुत सारे ऐसे examples देखे हुए, जैसे हमारा washing soda Na2CO3 10H2O, हमारा butyl copper sulfate CuSO4 into 5H2O, zinc ZnSO4 white vitriol into 10H2O. आपने कई सारे ऐसे formulas
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखा है, जिसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट है। एक्चुअली हम इनको अलग से क्यों लिखते हैं? एक्चुअली दीज आर नॉट केमिकली अटैच्ड टू द कंपाउंड। क्लियर? ये वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं हमारे मेन कंपाउंड के साथ, लेकिन इन वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस के कारण ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्लियर? इसीलिए इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो इस तरह से आपको अटैच दिखेंगे उन्हें कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन्हें कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी ये वाटर के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी कंपाउंड के साथ अटैच्ड हैं, तो वो कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में है, पाउडरी फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? इसीलिए इन वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम किसी भी प्रोसेस से हीट करके एनी प्रोसेस से इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर रिमूव कर दें तो हमारे ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे कंपाउंड्स पाउडरी फॉर्म में चले जाएंगे। क्लियर है सबको? सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस के कारण ये सारे कंपाउंड्स क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज अगर इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी इन वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम रिमूव कर दें तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जस्ट बिकॉज इनके प्रेजेंस से वो कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स। नाउ अगर हम ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H2CO4 ऑक्सैलिक एसिड में से दोनों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएंगे और हमें मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर। क्लियर है? वो अगेन ऑक्सैलिक एसिड ही होगा, लेकिन वो मिलेगा अगर हम उसको थोड़ा सा हीट करें तो दोनों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है एक ऑक्सैलिक एसिड के साथ, वो सबके सब उड़ जाएंगे एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पाउडर। नाउ लेट्स कम टू थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। नाउ लेट्स स्टार्ट फेरस सल्फेट। अभी मैंने फेरस सल्फेट इसमें नहीं लिखा। एक्चुअली फेरस सल्फेट को हम फेरस सल्फेट को पहले मैं लिखती हूँ। फेरस सल्फेट इज FeSO4 into 7H2O. This is ferrous sulfate crystals. Ferrous sulfate. Now this is ferrous sulfate. The ferrous sulfate is chemical name and the common name is green vitriol. Green vitriol. This green color is due to the presence of this 7H2O. अगर हम इस 7H2O को रिमूव कर दें तो ये फेरस सल्फेट व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर हम फेरस सल्फेट को अगर थोड़ा सा हीट करते हैं, स्मॉल हीटिंग देते हैं, तो क्या होगा कि फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग विल यूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट विल फॉर्म फेरस सल्फेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट भी हम इसको बोलते हैं। एनहाइड्रस ये हाइड्रेटेड था बिकॉज इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच थे। हाइड्रो वाटर के लिए यूज होता है, हाइड्रेटेड यानी इसमें वाटर प्रेजेंट था। अब इसमें से हमने वाटर रिमूव कर दिया तो ये बन गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अगर हम फेरस सल्फेट को लिटिल हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट फर्स्ट लूज करेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन and it will form anhydrous ferrous sulfate। और अगर अब हम इस फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करेंगे, इस फेरस सल्फेट को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा? इस फेरस सल्फेट को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म Fe2O3 plus SO2 plus SO3। Fe2O3 is reddish brown solid।
ये सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड मतलब पाउडर भी हो सकता है, पाउडर इज आल्सो सॉलिड, बट दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड। तो जब हम फेरस सल्फेट को और स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो हमें एक तो वो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3। और लेकिन जब आप ये हीटिंग करोगे तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलेगी। जो स्मेल होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होती है वो बर्निंग ऑफ सल्फर, जब सल्फर जलता है तो एक तरह की स्मेल आती है। वही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आपको मिलेगी जब आप फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण हमें बर्न स्मेल मिलता है, having burn smell of sulfur। इसी सल्फर डाइऑक्साइड के इवॉल्व होने के कारण हमें सल्फर के जलने की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। क्लियर है सबको? तो दिस वाज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और देखते हैं एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। ये है क्रोमियम ऑक्साइड और ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। वो है बनता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली तो इट फॉर्म्स क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड दिस इज वाटर। हम सब जानते हैं, इसका नाम लिखने की जरूरत मुझे एटलीस्ट नहीं होगी, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन, रिमेंबर वन थिंग, मैं एक बार आप लोगों को कहना होगा, व्हेनेवर यू राइट अ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए आप उस केमिकल रिएक्शन में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आप जो जो कंपाउंड रिएक्टेंट में यूज कर रहे हैं या रिएक्टेंट की तरफ जो कंपाउंड्स हैं या हमारे प्रोडक्ट में जो भी कंपाउंड्स बना है उन सारे कंपाउंड्स के नाम आप उस कंपाउंड रेस्पेक्टिव कंपाउंड के नीचे लिखते जाएंगे। आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है केमिकल रिएक्शन में। रिमेंबर वन थिंग कि आप टीचर को नहीं बता रहे हो, टीचर जानता है इसलिए उसने आपको क्वेश्चन दिया है। टीचर ये जानना चाहता है कि आप कितना जानते हो, आप कितना परफेक्ट किसी भी चीज को प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है सबको? इसीलिए जब भी आप कोई भी आंसर करो, मेक इट परफेक्ट एंड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन मेक श्योर दैट यू राइट द नेम ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स। हर कंपाउंड का नाम आप उसके फॉर्मूला के नीचे लिखते जाएंगे विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्लियर है सबको? Then this is called अच्छा, ये होता है क्रोमियम ऑक्साइड which is ग्रे इन कलर। तो जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो वो बनाएगा क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड H2O। क्लियर है सबको? इस फॉर्म एक बार और, चूंकि हीटिंग से कोई भी ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हीटिंग से हो रही है, तो ये जो H2O बनेगा शुरू में तो ये H2O गैसियस फॉर्म में रहेगा, स्टीम के फॉर्म में रहेगा, जिसको बाद में कूल करके आप लिक्विफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम शुरू में इसको GD लिखेंगे बिकॉज यहाँ हीटिंग का प्रोसेस यूज हो रहा है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा वो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन
This is lead nitrate. This is lead oxide. This is nitrogen dioxide. And this is obviously oxygen. इसका नाम मुझे लिखने की शायद जरूरत नहीं है ना। ये जो हमारा लेड ऑक्साइड, ये जो हमारा लेड नाइट्रेट है, दैट इज अ वाइट सॉलिड, और ये जो हमारा लेड ऑक्साइड है, ये हमारा येलो कलर का होता है। क्लियर है? और NO2 इफ ये पहले लिखते हैं ये वाइट, दिस इज सॉलिड, ये हमारा सॉलिड है जो येलो, ये हमारा NO2 है ब्राउन गैस। NO2 एक ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड रहेगा, येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनेगा जो एज अ रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड होगा, और ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, O2 भी निकलेगा, उसके साथ साथ ब्राउन फ्यूम्स NO2 गैस में भी आपको विजिबल होंगे, बिकॉज द फ्यूम्स विल बी ब्राउन इन कलर, तो यू कैन इजीली व्यू कि हाँ nitrogen dioxide gas is being released while the thermal decomposition reaction of lead nitrate. Now, one thing, this reaction is not balanced, so we have to balance the equation. Now, this is a balanced chemical equation. Let's move further to electrolytic decomposition reaction or electrolysis. The reaction, the decomposition reaction being carried out in the presence of the decomposition reaction is being carried out in the presence of in the presence of electric current. क्लियर? जब हम किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो वो अगर बहुत सिंपल सब्सटेंसेस में टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में रिएक्ट करता है, then that type of reaction is known as electrolysis और electrolytic decomposition reaction. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा H2O लिक्विड, इस पे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, electric current is being passed and it changes into H2 plus O2. This is the reaction. ये तो लिक्विड है, लेकिन हमारा ये दोनों जो बनेगा वो गैसियस फॉर्म में बनेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट कैसे करते हैं ये हम लोग एक बार देखते हैं।
ये हमारा कंप्लीट सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस कुछ इसी तरह कैरी आउट किया जाता है। कोई भी प्रोसेस, किसी भी चीज का अगर हमको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो वो कुछ इस तरह का होता है। हमने बीकर लिया है, बीकर में वाटर फिल कर दिया है जिसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 ऐड किया जाता है टू मेक इट अ गुड कंडक्टर। वाटर को और गुड कंडक्टर बनाने के लिए इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 ऐड कर दिया जाता है बिकॉज बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाटर में जाते ही आयंस में टूट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए आयंस की जरूरत पड़ती है, हम सब जानते हैं। तो जैसे ही H2SO4 वाटर में जाएगा वो आयंस में टूट जाएगा, वाटर को आयंस वो हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में। क्लियर है? बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड वो आयंस में ब्रेक कर जाएगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को इजी करेगा वाटर के अंदर से। These are two rods, these are two graphite rods, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं और इन इलेक्ट्रोड से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। एक पोल हमारा पॉजिटिव है, दूसरा हमारा नेगेटिव है। जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसे हम एनोड बोलते हैं, जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे हम कैथोड बोलते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू किया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरह से पास करेगी और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू होगी आप देखो, अच्छा हाँ, ये जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आप ये देख रहे हो, ये हमने दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब वहां पे रख दिया। दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब वहां पे रख दिए गए हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। नाउ एज द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, करंट जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे आपको दोनों तरफ बबल्स दिखने लगेंगे। दोनों ही तरफ आपको बबल्स दिखने लगेंगे। क्यों? दोनों तरफ आप देखोगे धीरे धीरे वहां पे बबल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम, लेकिन आप ये बबल्स को इकट्ठा करना शुरू होंगे, धीरे धीरे इकट्ठे होंगे। एक बात और का ध्यान रखना है कि अगर हम हमारा जो एक टेस्ट ट्यूब है उसमें गैस ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी में होगा बट इन रेस्पेक्ट टू द अदर टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपको ज्यादा अमाउंट गैस की दिखेगी और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको अमाउंट ऑफ गैस इन कंपैरिजन टू द अदर टेस्ट ट्यूब कम दिखेगा। दैट टेस्ट ट्यूब व्हिच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ गैस will be the test tube containing H2 gas and the lesser one will be the test tube containing the O2 gas। अब H2 और O2 में H2 डबल क्यों आता है और हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में ऑलमोस्ट क्यों आता है? बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए हमें दो एटम्स हाइड्रोजन की जरूरत है और एक एटम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर एक मॉलिक्यूल वाटर टूटता है तो दो एटम हाइड्रोजन के बनते हैं और एक ऑक्सीजन का बनता है। एंड दिस इज द वेरी रीजन व्हाई hydrogen is formed in double quantity in respect to the oxygen gas। क्लियर है? अब अगर हम एक बर्निंग स्प्लिंटर, एक जलती हुई तीली को इस टेस्ट ट्यूब के ओपन पार्ट पे ले आए, टेस्ट ट्यूब को हम थोड़ा सा ऊपर कर दें और वहां के ओपन माउथ, जो इसका माउथ है, उस माउथ के पास अगर हम एक बर्निंग स्प्लिंटर, जिस टेस्ट ट्यूब में गैस डबल क्वांटिटी में है, जिस गैस ज्यादा है, अगर उस टेस्ट ट्यूब के ओपन माउथ के पास हम एक जलती हुई तीली ले आए तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा और जो गैस होगी वो जलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? आपका बर्निंग स्प्लिंटर बुझ जाएगा लेकिन वो गैस जलनी शुरू हो जाएगी और आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। नाउ दिस पॉप साउंड इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट for the presence of hydrogen gas। कहीं भी हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रही है, अगर आप उसके पास एक जलती हुई तीली लेके आएंगे, इफ जलती हुई तीली बर्निंग स्प्लिंटर, अगर आप एक जलती हुई तीली उसके पास लेके आएंगे तो इट विल गिव अ पॉप साउंड। पॉप साउंड इज क्लियरली हर्ड। तो ये पॉप साउंड इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात, if a burning splinter is brought near the mouth of other test tube, हम दूसरे टेस्ट ट्यूब के पास अगर एक जलती हुई तीली लाते हैं तो वो जो जलती हुई तीली है वो और जोर से जलने लगेगी और ग्लो करके जलने लगेगी। This test confirms the presence of oxygen gas because oxygen is a supporter of
कंबशन। क्लियर है सबको? इलेक्ट्रोलिसिस वाटर है, वाटर का ये इलेक्ट्रोलिसिस है। इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट की जाती है सोडियम क्लोराइड की, जिसमें हम सोडियम, यहाँ जो हमने वाटर लिया था, वाटर में फ्यू ड्रॉप्स HCl डाला था, वहां हम मोल्टन NaCl लेते हैं। मोल्टन NaCl का मतलब उसको पानी में नहीं घोल देते हैं, दैट इज नॉट मोल्टन NaCl, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हम NaCl को पिघला देते हैं, वी टेक अ मोल्टन NaCl। तो इसी तरह NaCl का भी हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कैरी आउट करते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं एंड इट चेंजेस इनटू Na+Cl2। क्लियर है सबको? इसी तरह और यहाँ जो ये NaCl यूज होता है, दिस NaCl इज मोल्टन इन स्टेट, और ये हमारा सोडियम क्लोरीन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? आप लोग दिस इज मोल्टन सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। Carried out in the presence of light. Light में mostly sunlight. Light is mostly sunlight. Clear है? तो ऐसा decomposition reaction which is carried out in the presence of light is sunlight क्या है? Normal light. अब ये sunlight ही है जो हमें मिल रही है, तो normally हम sunlight को यहाँ light बोल रहे हैं, तो ऐसा decomposition reaction which is carried out in the presence of light is called फोटोलिसिस। इसका पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड फर्स्ट है सिल्वर क्लोराइड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को थोड़ी देर, सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमारा व्हाइट कलर का होता है, ठीक है? जस्ट सॉरी, सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमारा व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सन एक चाइना डिश हमारे आपको लैब में अगर देखा होगा एक वॉच ग्लास जिसको बोलते हैं, या चाइना डिश हमारे लैब में होती है, या किसी में भी अगर हम सिल्वर क्लोराइड को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए सनलाइट में, अगर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे ग्रे कलर का हो जाता है। ग्रे कलर का हो जाता है ये वो, तो दैट ग्रे कलर इज ड्यू टू द decomposition of silver chloride into silver and chlorine। और ये जो सिल्वर बनता है decomposition में, this is gray in color, और हमारा क्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है। क्लियर है? सनलाइट में अगर हम सिल्वर क्लोराइड को थोड़ी देर खुला छोड़ देंगे तो सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर हमारा, तो जो ये व्हाइट कलर है that will change into gray color slowly, and this gray color is due to the formation of silver। Hence, silver chloride in the presence of sunlight decomposes into silver and chlorine gas। इसी तरह अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड इज AgBr एंड सिल्वर आयोडाइड इज AgR। अगर हम इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का रिएक्शन कैरी आउट करें सनलाइट में, तो भी हमें यही देखने को मिलेगा। लेकिन सिल्वर आयोडाइड के केस में ये रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, सिल्वर क्लोराइड के केस में ये रिएक्शन स्लोएस्ट होगा। इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे कम वक्त में सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन होगा, और सबसे जल्दी सिल्वर आयोडाइड का डिकम्पोजिशन होगा, और सबसे देर से सिल्वर क्लोराइड का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। व्हाट इज H2O2? H2O2 सब जानते होंगे, आप लोग 10th क्लास में
syrupy liquid used as bleaching agent, used as bleaching agent। एक सिरपी जैसा लिक्विड होता है, गाढ़ा जैसा लिक्विड होता है, अगर हम उसको सनलाइट में एक्सपोज छोड़ दें, it will give H2 and O2, it will decompose, sorry, H2O and O2, it will decompose into water and oxygen gas। इसी रीजन से H2O2 को कभी भी ट्रांसपेरेंट कलर की बॉटल्स में स्टोर नहीं किया जाता है, टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सनलाइट। मोस्टली एम्बर ग्लास में इसको स्टोर किया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिकम्पोजिशन ड्यू टू द सनलाइट। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट thermal decomposition reaction, electrical decomposition reaction and photo decomposition reaction। क्लियर है सबको? हम लोगों ने ये देखा था कि combination reactions are generally endothermic in nature। क्लियर है? combination reactions are generally exothermic in nature, लेकिन decomposition reactions are generally endothermic in nature। endothermic in nature इसलिए होता है बेटा, क्योंकि endothermic in nature इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, अब यहाँ एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स टूट रहे हैं। बॉन्ड्स टूटेंगे तभी तो फिर ये टूट के अलग हो पाएंगे। तो कभी भी जब कोई बॉन्ड टूटता है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बॉन्ड टूटने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, हेंस decomposition reactions are endothermic in nature। क्लियर है? सबको याद है? हम लोगों ने अभी तक देखा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने देखा थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड this one photolytic decomposition, electrolytic decomposition reaction and thermal decomposition reaction। सेकंड हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अब हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है? पहले हमने देखा था, हमने अभी तक देखा कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। चलो redox reactions। या ऐसा करते हैं कि आज हम थोड़ा सा बैलेंसिंग में फर्दर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है? हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन फर्दर आज हम बैलेंसिंग के कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं। क्लियर है सबको? चलो लेट्स स्टार्ट विद मोर इक्वेशंस ऑन बैलेंसिंग। लेट्स स्टार्ट विद सम मोर बैलेंसिंग।
hydroxide, it gives calcium nitrate, it gives calcium nitrate and water. Now we have to balance this equation. Let's start balancing. This is LHS and this is RHS. Here hydrogen is equal to 1 plus 2, 3. Nitrogen is equal to 1. Oxygen is equal to 3 plus 2. Oxygen is equal to 5. Calcium is equal to 1. And this side, calcium is equal to 1. Nitrogen is equal to 2. Oxygen is equal to 3 to the 6 plus 1, 7. And hydrogen is equal to 2. Now let's start balancing the equation. Calcium बैलेंस है, इसके अलावा कुछ भी बैलेंस नहीं है. लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग विथ नाइट्रोजन. वहाँ नाइट्रोजन 2 है, हम यहाँ 2 दे देते हैं. यहाँ अगर हमने 2 दिया तो नाइट्रोजन तो हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन हमारा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और ये 3 to the 6 और 2 8 हो जाएगा. ठीक है. और इधर अगर हम यहाँ आते हैं, अब हमारा कैल्शियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाकी है. ऑक्सीजन अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा 3 to the 6 plus 2 that is equal to 8. So this reaction is now balanced. Clear? अच्छा, अगर हम वर्ड्स दें, ठीक है, लेट्स गिव एक इक्वेशन में इसको एक इस तरह लिख के देती हूँ और हमें उसको बैलेंस करना है. केमिकल इक्वेशन. पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर. पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर to give potassium hydroxide and hydrogen gas. हमको इसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेटिव बैलेंस इक्वेशन लिखना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर. पोटेशियम का सिंबल होता है K प्लस मेटल है सॉलिड प्लस water is H2O, that is liquid, and it reacts to give potassium hydroxide KOH plus H2 hydrogen gas. This is potassium hydroxide. This is potassium hydroxide. This is potassium metal. ठीक है, this is potassium metal. हमें इसका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. अच्छा, यहाँ हमारा K है 1, H है 2, O है 1. यहाँ हमारा K है 1, हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन है 1. करेक्ट? The only one unbalanced is हाइड्रोजन. ठीक है, ठीक है. अगर हम यहाँ हाइड्रोजन को 2 लिख देते हैं, 3 तो हम यहाँ कर नहीं सकते, तो हर हाल में हमें रखने देंगे इसको 4 करना है. हमने जैसे हाइड्रोजन को यहाँ 4 किया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया. अब ऑक्सीजन को इधर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 देना होगा, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, लेकिन साथ में पोटेशियम 2, तो हमने यहाँ दे दिया. एंड दिस KOH aqueous water. पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 बना रहा है. ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है वो एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, यानी वाटर में उसका सॉल्यूशन रहेगा. एंड दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट. एक और स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग. एक और स्टेटमेंट लिखते हैं. Barium chloride reacts with aluminium sulfate. Barium chloride reacts with aluminium sulfate. Barium chloride
reacts with aluminum sulfate. Barium chloride reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and barium sulfate as a precipitate. To give aluminum chloride and a precipitate of barium सल्फेट। अब हमको इस स्टेटमेंट का केमिकल इक्वेशन लिखना है। आप लोग ट्राई कीजिए अपनी कॉपी में, मैं तो बताऊंगी पर आप लोग भी अपनी कॉपी में इसको ट्राई करो। सबके सिंबल्स आपको पता है, सारे कंपाउंड्स के नाम आप लोगों को पता है, तो यू मस्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड का हम सॉल्यूशन लेते हैं प्लस Al2SO4O3. This gives aqueous solution. This is barium chloride. This is barium chloride. This is aluminium sulfate. Both solution में है water के aqueous solution and it reacts to give aluminium AlCl3 aqueous solution में aluminium chloride बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ऑलरेडी आपने स्टेटमेंट में दिया है दिस इज बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है which we either indicate with a downward arrow or we indicate by writing PPT। क्लियर है? तो ये है हमारा स्टेटमेंट और मैंने इसका इक्वेशन लिख दिया है। अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। लेट्स सी, इस तरफ अगर हम देखें तो बेरियम हमारा LHS and this is RHS। क्लियर? तो LHS में हमारा बेरियम है 1, क्लोरीन है हमारा 2, एल्यूमिनियम है हमारा 2, सल्फर है हमारा 3, ऑक्सीजन है हमारा 4 3 12 12। ठीक है? और RHS में एल्यूमिनियम हमारा 1 है, क्लोरीन हमारा 3 है, बेरियम हमारा 1 है, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। ठीक है? हम पहले बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम को। इधर 2 है, मैंने इसको इधर 2 है। ठीक है? नाउ क्लोरीन बिकम्स 6। अब हमने उधर 2 डाल दिया है तो क्लोरीन हमारा हो गया 6। अब यहाँ 3 डाल देंगे तो हमारा क्लोरीन तो इधर भी हो गया 6, लेकिन बेरियम हो गया हमारा 3। इस बेरियम को बैलेंस करने के लिए हम इधर 3 डाल देते हैं तो हमारा अब बेरियम भी हो गया 3। बेरियम कैल्शियम एल्यूमिनियम बेरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम बेरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब देखो सल्फर इधर 3 है और उधर 12 है। अब इधर 3 है और ऑक्सीजन 12 है। अब इधर भी सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 3 12, दैट इज इक्वल टू हमारा 3 और 12। द ओवरऑल इक्वेशन इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब मैं आप लोगों को कुछ वर्क देती हूँ जो आप घर पे जाके मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ जो आप अपनी कॉपी में बना के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लिसन स्टूडेंट्स, जब हमारे क्लासेस रिज्यूम होंगे तो मैं ये सब आपका चेक करूँगी। डोंट थिंक कि बस मैम ने यूँ ही ले दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन आवर क्लासेस रिज्यूम हम ये वापस से इनको डिस्कस करेंगे क्लास में। सो प्लीज डू ऑल द क्वेश्चंस in your copies, okay? Write a few statements as your homework.
hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Second is hydrogen sulfide gas burns in air. Hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. Third statement is solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and a solution of sodium chloride D. Sodium hydroxide solution in water react with hydrochloric acid solution in water to give sodium chloride and water ये 4 इक्वेशंस हैं, मैंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन स्टेटमेंट्स को आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कर भी लोगे। सो डू इट सीरियसली एंड जेन्युइनली, आप इसको करो। ओके, नाउ हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। देयर वर 3 पार्ट्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन: थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ द 2 अदर रिएक्शंस आर, अभी हमें 2 रिएक्शन और पढ़ने हैं, 2 नहीं 3, जिसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है हमें जो पढ़ना है फर्दर वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। हमने डिस्प्लेसमेंट हमें और अभी जो पढ़ना है उसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, सेकंड हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन, हमें तीसरा पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिडॉक्स reactions. So we will study all these reactions in the next lecture. Till then जो मैंने बताया है आप उसको अच्छे से करिए, आपको जो होमवर्क दिया गया है जेन्युइनली उसको बनाइए और सब कुछ रिवाइज करते रहिए। क्लियर है सबको?
See you in next class. Till then, पढ़ाई कीजिए अच्छे से and stay home, stay safe. Thank you.